Good morning, students. Today we are going to start our second chapter of Hornbill of class 11th. We are not afraid to die if we can all be together. This chapter is an account of an adventurous ordeal that a family experienced in one of the roughest seas, the southern Indian Ocean. Let's start the chapter. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6, daughter Suzanne, 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. It was July 1976. I means here narrator, his wife Mary, his son named Jonathan, who was 6-year-old, his daughter was Suzanne, who was 7 years old. They started their sea voyage from Plymouth to England to duplicate. Duplicate here means to follow the round world voyage which was made 200 years early by Captain James Cook. ये जुलाई 1976 की बात है. नरेटर उसकी पूरी फैमिली सी वॉयेज स्टार्ट करते हैं जो पहले कैप्टन जेम्स कुक ने 200 ईयर्स अर्लियर पहले की थी. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years, we had spent our leisure time honing our seafaring skills in British waters. The narrator says that he loved adventures. He had an ambitious plan. He wanted to duplicate the round the world voyage. So his wife Mary and the narrator, who is 37-year-old businessman, had dreamt to sail in the wake of the famous explorer. The narrator says that they have planned for the sea voyage in the famous explorer. So they spent 16 years to sharp their seafaring skill in British water. यहाँ पर नरेटर कहना चाहता है कि मैरी और जो नरेटर जिसके बारे में बताया गया वो 37-year-old बिजनेसमैन है, उन दोनों ने सपना देखा था कि भी वो सी वॉयेज करेंगे विच वॉज मेड बाय द कैप्टन जेम्स कुक. इसीलिए उन्होंने अपने 16 ईयर्स स्पेंड किए और अपना पूरा लेजर टाइम इन टू से द टाइम स्पेंट इन डूइंग व्हाट यू एंजॉय. Owning means sharpening. Seafaring means traveling on the sea. Skills, competence, intelligence. तो उन्होंने उनके ब्रिटिश वाटर्स के अंदर सी वॉयेज के ड्यूरिंग अगर कोई डिफ़िकल्टीज आ सकती थी तो उन सभी चीज़ों का उन्होंने पहले से ही एक्सपीरियंस किया और पूरा अपना लेजर टाइम, पूरा अपना फ्री टाइम उन्होंने 16 ईयर्स का स्पेंड किया अपनी सीफेयरिंग स्किल को शार्प करने में. Our boat Waywalker, a 23-meter 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing in the roughest weather which we could. Narrator describe about its boat, which named Waywalker, which was 23-meter long and 30-ton wooden, was used to beautify it, to make it, and it was built by the professionals, means experts, and they spent months to test in the roughest weather which they could find during their sea voyage. यहाँ पर नरेटर कहता है अपनी बोट के बारे में बताना चाह रहा है कि वे वॉकर जो 23 मीटर लंबी है, 30 टन वुडन उसके अंदर लगाया गया है, वो एक्सपर्ट ने इसको बनाया है और इसको सी वॉयेज जाने से पहले इसको रफेस्ट वेदर के अंदर जो सी वॉयेज के ड्यूरिंग वो फेस कर सकते थे पहले से ही इसको टेस्ट किया गया था. The first leg of our planned 3-year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly. As per their planning, they thought that they must cross 1,05,000 kilometer distance, and it passed pleasantly. As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, जैसे कि अफ्रीका से वो केप डाउन की तरफ वेस्ट साइड की तरफ जाते हैं तब उन्होंने जैसे कि उनकी प्लानिंग थी कि उस इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद वो नियर अबाउट 1,05,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे, ऐसा उनका कवर हो भी गया. देयरफॉर heading east, its
डायरेक्शन में बढ़ने से पहले वी टुक ऑन 2 crewmen. Crewmen here means the men who help or work at the ship. So the narrator helped take the help of 2 crewmen. One is American and one is Switzerland. American Larry Wiesel and Swiss Herb Sizzler to help us to tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. Narrator ने ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ने से पहले लैरी विजल और हर्ब सीजलर को की हेल्प ली। वर्ल्ड का जो रफेस्ट सीज था साउथर्न इंडियन ओशियन, उसमें सभी सिचुएशंस को फेस करने के लिए। On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. जब वो केप टाउन से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने वी बिगेन टू एनकाउंटर मीन्स टू फेस, उन्होंने फेस करना स्टार्ट कर दिया। स्ट्रॉन्ग गेल्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड्स, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स वी कैन से। तो उन्होंने एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड्स को फेस करना स्टार्ट कर दिया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स दे ब्लू कंटिन्यूसली, वो लगातार चलती रही तेज हवाएं। गेल्स डिडंट वरी मी, नरेटर सेज दैट गेल्स डिडंट वरी हिम बट द साइज ऑफ द वेव्स विच वॉज अलार्मिंग, बट जो साइज था वेव्स का विच वॉज वेरी कॉजिंग वरीनेस, विच वॉज वेरी फियरफुल, एंड इट वॉज अप टू 15 मीटर एज हाई एज आवर मेन मास्ट। एंड द नरेटर सेज दैट द वेव्स वॉज 15 मीटर हाइज, वो इतनी ऊंची थी, लगभग 15 मीटर ऊंची, जो उनके मेन मास्ट से भी ऊंची थी। December 25th found us 3,500 kilometers east of Cape Town up to 25th December means on the Christmas day they crossed the distance 3,500 kilometers east of the Cape Town. Despite atrocious weather, atrocious means very bad, we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. नरेटर कहता है कि भी इतना ज़्यादा वेरी बैड वेदर होने की वजह से भी, रोस्ट वेदर होने के बावजूद भी उन्होंने अपना जो क्रिसमस डे था वो अपने हॉलीडेज़ में बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, 1 जैन तक वेदर कंडीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, बट दे इमेजिन दैट द वेदर कुड बी चेंज सून। उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि भी वेदर चेंज हो सकता है, एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स्ट, ये चेंज भी हुआ बट इन द रोस्ट सिचुएशन, और भी बुरी हालत हो गई। एट डाउन ऑन जनवरी 2 जब सूर्योदय होता है, द वेव्स वर जिजांटिक मीन्स ह्यूज, वेव्स का जो थी वो बड़ी विशाल होती चली गई। वी वर सेलिंग विद ओनली स्टॉर्म जिब, हम एक छोटी सी जो स्टॉर्म जिब के साथ आगे बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नोट्स, और हम लगभग 8 नोट्स, मिनटों से यहाँ पे समुद्री की जो डिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए नोट्स का यूज किया जाता है। नरेटर कहता है कि वो लगभग 8 नोट्स की दूरी तय कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless enormous seas rolling towards us. जैसे जैसे लहर के साथ उनका शिप भी ऊपर की तरफ जा रहा था, तब वहाँ से वो एक एंडलेस, कभी ना ख़त्म होने वाला एनॉर्मस ह्यूज समुंदर, एक विशाल सीज ओशियन देख सकते थे लहर के ऊपर के साथ, शिप के साथ साथ जाने से। और ऐसा लग रहा था दैट द शिप रोलिंग टुवर्ड्स अस, जो सी है वो हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। एंड द स्क्रैमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और लगातार विंड के चलने से जो पानी की बौछारें थे वो हमारी बॉडी को हर्ट कर रही थी, हमारे ईयर्स को भी हर्ट करती जा रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, बोट की स्पीड को स्लो करने के लिए भी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब को वो नीचे गिरा देते हैं। एंड लेस द हैवी मोरिंग ड्रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न, और एक हैवी सी रस्सी का फंदा बनाकर जो बोट का पीछे वाला भाग है उससे उसको बांध देते हैं। देन वी डबल लेस्ट एवरीथिंग, तब हमने हर चीज़ को डबल बांध दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डोन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, डोंट मीन्स टू से वियर। अब नरेटर कहता है कि उन्होंने अपनी जो लाइफ राफ्ट ड्रिल थी, जो लाइफ लाइन्स उन्होंने अटैच कर ली, ऑयल स्किन्स कपड़े पहन लिए, एंड लाइफ जैकेट्स को ले लिया, और वेट किया दैट द सिचुएशन हाउ इट वुड बी चेंज।
The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. Impending, the coming. अब जो आने वाला डिजास्टर था उसका पहला इंडिकेशन, पहला संकेत लगभग शाम के 6 बजे आया. With an ominous silence, एक ominous silence के साथ, which can't be considered a good sign. The wind dropped, हवा रुक गई, and the sky immediately grew dark. लेकिन जो स्काई था वो अचानक से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया. Then came a growing roar. तब एक रोयर साउंड क्रिएट हुई, and an enormous cloud toward our aft of the ship. और हमें लगा कि एक बहुत बड़ा सा बादल हमारे शिप के बिल्कुल, हमारे शिप को उसने कवर कर लिया है, बड़े से बादल ने. With horror, I realized that it was not a cloud. डर के मारे मैंने महसूस किया, it was not a cloud. ये क्लाउड नहीं था रियलिटी में, but a wave like no other I had ever seen. लेकिन ये तो एक बहुत बड़ी वेव थी जिसने हमारे जो शिप था उसको कवर कर लिया था. एंड नो अदर आई हैड एवर सीन. और इतनी बड़ी लहर जो जिसे नैरेटर ने पहले कभी नहीं देखा था. इट अपरेंट परफेक्टली वर्टिकल. ये एकदम से वर्टिकल हो गई. एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स. और जो वेव्स अभी तक वो फेस करते आ रहे थे उसकी हाइट इसकी हाइट से इस वेव्स की हाइट, अब वेव्स की हाइट ट्वाइस हो गई है. विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रस्ट, एक टूटे हुए भयानक से पर्वत शिखर की तरह. द रोयर चेंज्ड to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. अब roar changed into thunder, और as the stern moved up the face of the waves, अब जैसे ही स्टीयरिंग को वेव्स की तरफ, पीछे की तरफ उसका शिप का फेस कर दिया गया. कुछ मोमेंट के लिए मैंने सोचा कि भी हम इसको भी कवर कर लेंगे. अब जो मिनटों से जो हमारी जो बोट है वो इन वेव्स के ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शूक द डेक. लेकिन तभी एक बड़े से विस्फोट ने, ट्रेमेंडस एंड ह्यूज, बड़े से विस्फोट ने हमारे डेक होता है बोट का पीछे वाला पार्ट, उसने उसको हिला दिया. अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. तभी पानी का ग्रीन एंड वाइट कलर का जो वाटर था वो हमारे शिप के अंदर आ गया. माई हैड स्मैश्ड इन द व्हील. नरेटर्स हैड स्ट्रक टू द व्हील. उनका चेहरा, सिर व्हील से टकरा गया. एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स. ऐसा लग रहा था जैसे मैं ओवर बोर्ड के ऊपर से उड़ रहा हूँ और डेफिनेटली वेव्स के नीचे डूबने वाला था. आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ. कमिंग डेथ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. एंड आई वॉज लूसिंग कॉन्शियसनेस. और इससे मेरा सेंस खोता जा रहा था. आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल. और मैंने अपने अंदर एकदम से पीसफुल के साथ अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल किया. मैंने शांति महसूस की. अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अचानक से मेरा सिर वाटर से बाहर निकल आता है. अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग. ऐसा लग रहा था वेव वॉकर भी डूब जाएगी. हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. बोट का जो मास्ट था वो हॉरिजेंटल हो गया था. देन ए वेव हर्ड हर अपराइट. लेकिन तभी एक वेव्स आती है और अपने फोर्स से हमारी बोट को सीधा कर देती है. माई लाइफ लाइन जग टोट. टोट मीन टू से सडनली ब्रोकन. मेरी लाइफ लाइन अचानक से टूट गई. आई ग्रैब द गोल्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बून. तभी मैंने गोल्ड रेल्स को पकड़ लिया और वेव वॉकर के मेन बून के अंदर पहुंच गया. Subsequent waves tossed me around the deck like a dog. After that, waves के फोर्स ने उसे डेक के पीछे वाले पार्ट की तरफ जो बोट का था वहाँ पे उसे एक डोल की तरह इधर उधर उछाल दिया. My left ribs cracked. मेरी जो लेफ्ट वाली रिब्स थी वो टूट गई. My mouth filled with blood. मुंह पूरा खून से भर गया. एंड ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए. Somehow I found the wheel. किसी न किसी तरीके से नैरेटर वॉज सक्सेसफुल टू फाइंड द व्हील. लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. और जब तक कोई आगे कोई बड़ी लहर वेव उनके पास नहीं आ गई तब तक वो वहाँ पे सीधा लटका रहा. एंड हंग ऑन, और वहीं पर वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी. आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो. Narrator could feel, he could imagine that the water had gone into the ship. But I dare not abandon the wheel to investigate.
Investigate means to examine, but he can't dare to leave the wheel to investigate. Suddenly, the front hatch was thrown open. Front hatch means the front door इन द डेक ऑफ ए शिप. तभी नरेटर क्या देखता है कि भी जो सामने वाला दरवाजा है वो खुला. एंड मैरी अपीयर्ड, और उसकी वाइफ वहां से दिखाई दी. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रैम्ड. उन्होंने कहा कि भी हम सब डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड एंड एवरीवेयर वी आर फुल ऑफ वाटर. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. स्क्रैम्बल्ड मीन्स स्ट्रगल. अब नरेटर जैसे ही डेक की तरफ आगे जाने की कोशिश कर रहा था, तभी वो कहता है कि भी तब तक आप व्हील को पकड़ लो. लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन. वो पानी को बाहर निकालते जा रहे थे लाइक मैडमैन. पूरी तरीके से अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट ग्रेजी एंगल्स. द होल स्टारबोर्ड साइड बस्ट इनवर्ड्स. क्लोज क्रॉकरी चार्ज टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर. जो ब्रोकन वुडन पीसीस थे वो क्लोथ्स, क्रोकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज हर जगह इधर उधर पानी के अंदर बहते जा रहे थे. द होल स्टार बोर्ड मीन टू से राइट साइड में जो बोर्ड था अब वो अंदर की तरफ धंस गया था. आई हाफ स्वाम हाफ क्रोल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन. आर यू ऑल राइट. तभी नरेटर कहता है कि भी मैं कुछ तैरता हूँ, कुछ क्रोलिंग करता हूँ, और किसी न किसी तरीके से चिल्ड्रन के कैबिन में पहुँच गया. एंड सेड if they are all right. Yes, they answered me from the upper bunk. Upper bunk means the sleeping berth. उन्होंने जवाब दिया कि भी of course daddy we are all right, but my head hurts a bit. but शिव कहती है कि भी मुझे हल्का सा दर्द है सिर में. Pointing to a big bump above her eyes. उसकी आंख के ऊपर एक बड़ा सा बम्प निकला हुआ था. I had no time to worry about bumped head. Narrator says that he was not having time to worry about the bump head of her daughter. After finding a hammer, screws and canvas, I struggled back on deck. The narrator tried to find out hammer, screws and canvas, and he struggled to move back towards deck. With the starboard side best open, we were taking water with each wave that broken over us. Here best means smashed. जो राइट साइड वाली जो दीवार थी जो अंदर की तरफ धंस गई थी, टूट गई थी, उसकी वजह से पानी लगातार अंदर आता जा रहा था और वो हमारे ऊपर डायरेक्ट गिर रही थी. If I couldn't make some repair, we would surely sink. नरेटर कहता अगर उसने कुछ उसको अरेंज ना किया होता, उसके कुछ ऐसा अरेंजमेंट ना किया होता कि जिससे वो रिपेयर ना हो पाती, तो शायद वो वहाँ पे डूब गए होते. But at last he was successful to do some repairment there. Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof has covers across the capping holes. नरेटर कहता है कि भी किसी न किसी तरीके से उसने कैनवास को फैला दिया और जो वाटर प्रूफ था हैच, उसको जहाँ से पानी बोट में होल बने हुए थे वहाँ से पानी अंदर आ रहा था तो उनको कवर कर दिया. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो. अब कुछ एक पानी ही कुछ मात्रा में लेस क्वांटिटी में ही पानी नीचे से आ रहा था. बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड. अब बहुत सारा पानी बोट की साइड से टकरा के वापस जा रहा था. More problems arose when our head pumps started to block up with debris floating around the cabins and the electric pump short circuited. Narrator कहता है कि भी प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ गई जब उनका हेड पम्प ब्लॉक हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया. बिकॉज जो डेब्रीज था, डेब्रीज हियर मीन्स ब्रोकन पीसीज ऑफ वुड और मेटल्स, उसकी वजह से हेड पम्प बिल्कुल बंद हो गया, डैमेज हो गया. And everything was going to be damaged now. Around the cabins and the electric pump short circuited. Even जो electric pump था वो भी short circuit हो गया. The water level rose threateningly. Back on deck, I found that our 2 spare head pumps had been rest overboard along with the foresail, the jib and dinghies and the main anchor. Here foresail means the front big sail. आगे वाला बड़ी एक कर्टेन टाइप में होता है. डिगीज
स्मॉल ओपन बोट्स के रूप के लिए यूज़ किया जाता है. एंकर a heavy metal object which dropped over the side of a ship to keep it one place, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में लंगर बोलते हैं. लंगर. नरेटर कहता है कि वो वापस डेक पर गया और उसने देखा कि भी हमारे जो एक्स्ट्रा हेडपम्प्स थे वो खुले थे. उनका जो डिगीज थी, जो मेन एंकर था, फोर्सेस सेल और स्टॉर्म जी, एवरीथिंग. देन आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. नरेटर को सडनली याद आता है कि भी उनके पास एक इलेक्ट्रिक पंप है चार्ट रूम के नीचे. आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप के साथ उसको कनेक्ट किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्ड. और नरेटर कहता है कि भी वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल था फाइनली दैट अनदर इलेक्ट्रिक पंप वर्कड. The night dragged on with an endless bitterly cold routine of pumping, steering and working the radio. नरेटर कहता है कि भी ऐसी रात कभी भी ख़त्म ना हो. The strong winds were blowing, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई थी और लगातार they were pumping out the water, पानी को बाहर निकाल रहे थे. स्टीयरिंग कर रहे थे. वर्किंग ऑन द रेडियो, वो कभी भी ख़त्म ना होने वाली रात ऐसा लग रहा था. वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मिड डे कॉल्स. नरेटर कहता है कि मिड डे कॉल्स का वो कोई भी उन्हें रिप्लाई नहीं मिल रहा था. मिड डे कॉल्स मीन्स होता है सिग्नल्स फॉर हेल्प, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. नरेटर कहता है कि भी हम लगातार मिड डे कॉल्स कर रहे थे हेल्प मांगने के लिए, बट हम ये सरप्राइज नहीं था कि भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हम वर्ल्ड के इतने ज़्यादा दूर पहुंच चुके थे कि भी वहाँ पे मिड डे कॉल्स भी कोई हमारी हेल्प नहीं कर पा रही थी. दैट इज़ नॉट ईजी टू कनेक्ट दीज थिंग्स. शूज़ हैड स्वोलन अलार्मिंग. शू का जो सिर था वो काफ़ी फूल गया था, सूज गया था. शी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज. उसकी आंखें काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी. नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म. नरेटर को एक बड़ा सा कट अपने आर्म पे लगा हुआ दिखाती है. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैड नॉट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस. मैंने मुझसे पूछा कि भी आपने मुझे अपनी इंजरीज के बारे में पहले क्यों नहीं बताया. शी रिप्लाइड, आई डिडंट वांट टू वरी यू when you were trying to save us all. मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, आपको वरी करना नहीं चाह रही थी, जबकि आप हम सभी को ही बचाने की कोशिश कर रहे थे. Here we find that even a small girl, Shu, also encouraged her father to fight against the problem. She didn't want to worry her parents when they were trying to save them all. It was the optimistic thing. That how much they face the difficulties, how the small child also understand the situations. She encouraged her parents to fight against the problem. This is the first part of the chapter. We will learn second part of the chapter later.